Okay. So कल हमने yesterday we saw how we can add element in the list. Sorry, how you can have multiple elements in the list and nothing but a common element or different data types of element which you can have. It's called heterogeneous property. Then duplicates are not allowed. Indexation and slicing is possible. Right? So these are the options we had actually practically we have seen. And list is a mutable. Mutable means it's changing, or we can change a list, something like this, right? So this is how you can create a different list, and indexation and slicing के बारे में हमने detailed में discuss किया था. This is one of the example which we used to just to show how execution works, and start end minus one step. So this already, like we have seen multiple times in case of range, in case of uh, string indexing slicing, in case of list indexing slicing. So same ये start end minus one step works everywhere. Okay. And colon colon minus one definitely one of the interview question reverse, और इसी का एक example है palindrome numbers. Okay. Then accessing all the values for loop वगैरह use करके we can have or we can use, right? Okay. इसका while loop का भी एक implementation था, कल हमने देखा था, ये implementation था. And if you want I can once again do it for you just to avoid any confusion. चलो while loop के लिए क्या लगता है, basic information is when you should have a counter. एक counter चाहिए हमें जो count करेगा, and condition चाहिए जो condition apply करेगा. Let me add few more fields. हाँ, now I guess it is clear. Counter चाहिए, counter को I लिखना है तो I लिखिए, 0 लिखना है तो 0, and there is a condition. Condition, right? While के आगे condition होता है. So while counter is less than greater than, जो भी condition आपको लिखना है, for simplicity I will keep it as a 3. Okay, counter, and let's go with this approach, print counter, and क्या रहता है ultimately counter is equal to counter plus 1. Yes, right? Simple program. And if I execute this code, 0 1 2 count हो जाता है. Clear? और ऑनलाइन आपने देखा होगा तो Hello. यस. Sir, your screen is not visible. ओके गुड. अभी दिख रहा है. सो दिस इज द प्रोग्राम आई रोट. इफ यू वांट मे बी लेट मी राइट इट वंस अगेन. Generally used I to counter will start with 0 while, right, counter is less than, I need to give any condition. To this condition I am giving print counter. Okay, or counter is equal to counter plus 1. हो गया एग्जीक्यूट. इफ यू वांट यहाँ से भी एग्जीक्यूट आप करके देख सकते हो. ये देखिए 2 है, 3 अगेन 4. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट और यू कैन एग्जीक्यूट दिस कोड. और ये ऑनलाइन आपने बहुत जगह इसका एक दूसरा इम्प्लीमेंटेशन भी देखा होगा. जनरली इसको ऐसे भी लिखा जाता है, काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1. ये इसका शॉर्टकट है. ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट वर्जन है. ओके, यू कैन चूज एनीवन, नॉट एन इशू. इसका और एक एडिशनल इम्प्लीमेंटेशन है. लेट मी सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. या
सो एक ये ऐसे भी करके कुछ नया अभी आया है, लेटेस्ट वर्जन 3.9 में, वालरस ऑपरेटर कर कहते हैं उसे, कोलन एंड डबल इक्वल टू करके, बहुत लेटेस्ट है, मैंने भी लाइक फ्यू 2-3 दिन पहले ही सुना ऐसा कुछ है, बट या देयर इज समथिंग लाइक दिस, किसी ने पूछा तो आप बोल सकते हो कि इट्स अंडर डेवलपमेंट और बहुत लेटेस्ट है। सो सपोज ये 0 1 2 जो प्रिंट हो रहे हैं एंड वट एवर इंडेक्स वी जनरेट राइट लिस्ट के लिए, दीज आर द सेम, तो आई कैन यूज दिस 0 and 2, सपोज आई क्रिएट समथिंग कॉल्ड नेम, names is equal to Maya, right, comma Mohan and comma Das. So if इसको इंडेक्सिंग करना है तो क्या होगा, 0 यहाँ पे रहता है, 1 and ये 2. So can I these numbers with this index? Definitely. ये names और ये नंबर मैं कंबाइन करके आई कैन एग्जीक्यूट दिस कोड। तो यही हमने किया है। काउंटर में जो नंबर्स आ रहे हैं 0 1 2, इसे काउंटर को हम यूज करेंगे नेम्स के अंदर। कॉपी नेम्स यहाँ पे लिखे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंटर। लिस्ट का इंडेक्सेशन इफ यू रिमेंबर, आप सपोज यू वांट टू प्रिंट माया, तो व्हाट यू राइट नेम्स ब्रैकेट ऑफ 0 राइट माया। यही हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है और 0 इज रिप्लेस्ड विद द वेरिएबल कॉल्ड काउंटर। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे काउंटर आगे बढ़ेगा तो 1 आएगा, तो नेम्स ऑफ 1 आएगा, नेम्स ऑफ 2 आएगा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द व्हाइल लूप इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इस नंबर 3 को आप रिप्लेस भी कर सकते हो, किसके? इसके लेंथ से। चेक लेंथ ऑफ नेम्स, तो मैं इसे कॉपी यहाँ पे 3 का चेंज कर देता हूँ, ये देखिए सेम आउटपुट आएगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज व्हाइल लूप एंड सिंपली यू कैन यूज फॉर लूप एज वेल। दोनों लूप आप यूज कर सकते हो टू प्रिंट अ लिस्ट, राइट, to generate a list or two numbers. Okay, understood or not? और loop का this is the implementation in the for loop. ये clear है यहाँ तक? हाँ, hope everybody is clear. Okay, so once we are done with this, the next topic is about methods. लिस्ट के जो मेथड्स है, जैसे स्ट्रिंग के मेथड्स है वैसे लिस्ट के भी मेथड्स है। ओके, एंड ऑपरेटर्स भी है, लाइक इस ऑपरेटर्स आर आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, नीचे कई ऑपरेटर्स रहेंगे आई गेस। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, ठीक है। सो विल कवर मेथड्स एंड देन वी कैन टच अपॉन ऑपरेटर्स। सो लिस्ट के मेथड्स, जैसे स्ट्रिंग के मेथड्स थे, स्ट्रिंग के क्या मेथड्स हैं? पहले तो मेथड्स आर नथिंग बट इनबिल्ट फंक्शन। जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उन्हें मेथड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोज इनबिल्ट फंक्शन डिपेंड ऑन डेटा टाइप। स्ट्रिंग डॉट ऐसे आप लिखते हो, राइट, डॉट ऑपरेटर यूज करते हो, दैट्स व्हाई दैट इनबिल्ट फंक्शन बिकम्स अ मेथड। जैसे हमने स्ट्रिंग का देखा था वैसे ही लिस्ट के भी बहुत सारे मेथड्स है, ये देखिए यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर नोटेड हियर। ये पाइथन का एक डॉक्यूमेंटेशन का इजी एक वेबसाइट है जहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप रेफर कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, देन लिस्ट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट इज म्यूटेबल, राइट, सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड एलिमेंट इन दिस। ऐड करने के लिए क्या है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। ये देखिए, इफ यू ऐड, एडिशन के लिए देयर आर 3 फंक्शन, इंसर्ट, अपेंड एंड एक्सटेंड। हर एक का पर्पज अलग अलग है, बट तीनों का फाइनल आउटकम रहता है एडिंग द एलिमेंट। सो लेट्स ट्राई ऐड वन बाय वन।
ये देखिए एक मार्क्स नाम का लिस्ट है, उसमें 20 30 40 है, and I want to add something or I want to insert something. So what you do, you write marks dot insert, और इंसर्ट के अंदर कौन से वेरिएबल पे लिखना है, 0th इंडेक्स पे ड्रॉ करना है तो 0th इंडेक्स यहाँ पे लिखिए, क्या ऐड इंसर्ट करना है ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। द मोमेंट यू एग्जीक्यूट ये लिस्ट मॉडिफाई होगा और ये देखिए 0th एलिमेंट पे ये आ गया है जो आपको ऐड करना था, एंड रिमेनिंग लिस्ट इज एज यूजुअल। ओके, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कौन से लोकेशन पे आप ऐड कर रहे हो। सपोज यू वांट टू ऐड 30 के बाद 35 ऐड करना है, तो व्हाट आई कैन राइट, मार्क्स डॉट इंसर्ट, कौन सा लोकेशन, बाय द वे ये अपडेटेड आपके लोकेशंस हैं, ये अपडेटेड है, तो ये हो गया 0th इंडेक्स कॉमा, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स कॉमा, ये हो गया सेकेंड इंडेक्स कॉमा थर्ड इंडेक्स, राइट। तो थर्ड के बीच, सेकेंड और थर्ड के बीच यहाँ पे 35 चाहिए, तो आई विल यूज 3 कॉमा 35। ओके, एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट किया एंड देन प्रिंट करके देखिए, अभी मार्क्स हो गया, थर्ड लोकेशन पे 35 आ गया, आगे चला गया 40। अंडरस्टूड। सो दिस इज अ इंसर्ट जहां पे एडिशन होता है, जैसे स्ट्रिंग में अपर लोअर कैपिटलाइज स्वैप केस था, वैसे ये इंसर्ट है। इसका ही और एक वर्जन है कॉल्ड अपेंड। अपेंड ऑलरेडी क्या करता है, इट एड्स द एलिमेंट एट द लास्ट, यहाँ पे इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, लास्ट में ऐड करता है। मार्क्स डॉट अपेंड, आपको 500 के बाद 600 करना है तो मार्क्स डॉट 600, राइट, और आपको 800 900 ऐसे कुछ ऐड करना है तो यू कैन डू दैट एज वेल। तो मार्क्स डॉट अपेंड, क्या ऐड करना है, 6 7 8 9 900, चलो एग्जीक्यूट, प्रिंट करके देखिए मार्क्स एग्जीक्यूट होंगे। आखिरी में तो जनरली डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट, तो आप बोल सकते हो अपेंड एड्स एलिमेंट एट द लास्ट एंड इंसर्ट कैन ऐड एलिमेंट एट एनी स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, एनी स्पेसिफिक लोकेशन, एंड जो भी आप डेटा पास करोगे, सपोज यहाँ पे मल्टीपल एक टपल पास किया है, राइट, पैरेंथेसिस आपको दिख रहा है, सो दिस इज अ टपल, और एग्जैक्ट वो टपल एज अ वन सिंगल एलिमेंट ऐड हुआ है। ये जो 35 है ये वन सिंगल एलिमेंट ऐड हुआ है, सो अपेंड एंड इंसर्ट। नाउ देयर इज थर्ड ऑप्शन कॉल्ड एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट ऐड करता है। मार्क्स डॉट एक्सटेंड, 700 800 एंड 900 ऐड करना है तो इंडिविजुअली एलिमेंट ऐड करेगा, देखिए 700 800 एंड 900 ऐसे। यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स, आपको कुछ अलग ऐड करना है तो लेट्स ट्राई। मार्क्स क्या है पहले प्रिंट आउट देख लीजिए, ये है, राइट। नाउ यू नीड टू ऐड 1000 एंड 2000, 1000 और 2000 ऐड करना है, तो जनरली मार्क्स डॉट एक्सटेंड, ओके, नहीं पता स्पेलिंग तो टैब प्रेस करके आप फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूला। क्या एक्सटेंड करना है, 1000 2000, हो गया एग्जीक्यूट, देन मार्क्स, ये देखिए। सो दिस इज हाउ यू कैन execute the program. So I can add individual element, ये देखिए मैं यहाँ पे इंसर्ट लिखता तो ये पूरा एज अ सिंगल एलिमेंट ऐड हो जाता था एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। चेक, आपको सेम ऐड करके देखिए, मार्क्स डॉट इंसर्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8th पोजिशन, और बीच में ऐड करना है तो कर सकते हैं, नॉट एन इशू। यू वांट टू ऐड ऐसा कुछ ऐड करना है नंबर्स, आप कर सकते हो मार्क्स। ओके, गॉट इट।
क्लियर? सो जनरली ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट, अपेंड एंड एक्सटेंड? So insert at 4 number. If you want to add anything at 4 number 450, तो ये 4 नंबर पे ऐड होगा. 0 से स्टार्ट होता है, राइट? 0 1 2 काउंट कीजिए. ये 0 है, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये फोर्थ पोजीशन पे 450 ऐड हुआ है. इंसर्ट. ओके, क्लियर? लेट्स फॉलो समथिंग विद द डिलीट. ये हो गया एडिशन के. डिलीशन के यहाँ पे दो है, रिमूव एंड पॉप. मान लो जैसे एलिमेंट ऐड कर सकते हो आप, वैसे ही एलिमेंट रिमूव और डिलीट भी कर सकते हो आप. तो हाउ आई कैन डू? देयर इज वेरी फेमस कॉल्ड पॉप. पॉप क्या करता है? एलिमेंट रिमूव करने के लिए यूज होता है. सपोज मार्क्स के अंदर इतने वेरिएबल्स हैं, राइट? एंड आई वांट टू रिमूव दिस. तो इफ आई राइट मार्क्स डॉट पॉप, ये आखिरी का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा. इफ यू ऑब्जर्व, क्लिक, ये देखिए हो गया. यहाँ तक ही आया है. और एक बार मैं पॉप करूंगा तो 2000 डिलीट हो जाएगा इसमें से. ये देखिए, लेट मी राइट मार्क्स डॉट पॉप एंड मार्क्स. ये देखिए चला गया. सो जितनी बार पॉप करता हूँ उतनी बार ये डिलीट हो जाता है. ओके, आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है तो यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो. ऐसे. तो पॉप का और अलग भी एक यूज केस है जहाँ पे आप डायरेक्टली इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हो. ओके, तो इंडेक्स में क्या होता है, यू कैन मेंशन कि क्या डिलीट करना है, क्या रिमूव करना है. देखिए ऐसे एग्जांपल दिया है. एक तो डायरेक्टली पॉप करोगे तो 3 आएगा, जो आखिरी वाला है, क्योंकि डिफॉल्ट -1 रहता है. बट पॉप एट 0th लोकेशन करोगे तो ये 1 डिलीट होगा, 2 एंड 3 बचेंगे. करके देखिए आपके डेटा पे. ये मेरा डेटा है मार्क्स, राइट? मार्क्स. अभी मुझे बताइए ये 440 रिमूव करना है, तो व्हाट आई कैन डू, मार्क्स डॉट पॉप. तो आई नीड टू गिव अ इंडेक्स. तो 40 का इंडेक्स क्या है? 0 1 2, राइट? एग्जीक्यूट. आप मार्क्स प्रिंट करके देख लीजिए एक बार इफ यू वांट. चला गया. यस, नो? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. स्क्रीन प्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं, बिकॉज not a single day you have presented your screen, so I'm not sure कि आप लोगों को सही में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Okay. Yes. ठीक है. एडिशन ऑफ एलिमेंट. आप डायरेक्टली एम्प्टी लिस्ट में भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं. ओके, ये these are the range and the list. बट सपोज आपको ऐड करना है कुछ एलिमेंट, इसके अंदर ऐड करना है, इसके अंदर ऐड करना है, तो यू ऑलरेडी नो, राइट? अपेंड करके हम करते हैं. ओके, तो अपेंड करना है. सपोज लिस्ट 1 लिस्ट 2 है और आपको कुछ अपेंड करना है. कैन एनीबॉडी गिव मी एन एग्जांपल? लिस्ट 2 में मुझे अपेंड करना है. लिस्ट 2 यहाँ पे है 1 3 5 7 9. नेक्स्ट एलिमेंट मुझे ऐड करना है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लिस्ट. वर्क हो रहा है क्या आपके इसमें, अपेंड वगैरह?
ओके, ब्लैंक एम्प्टी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, आपको पता ही है, अपेंड, ये हमने ट्राई किया है। एंड रेंज, नाउ इट इज आई गेस फिफ्थ और सिक्स्थ टाइम वी आर लर्निंग व्हाट इज रेंज। नंबर जनरेशन के लिए हम रेंज यूज करते हैं। ओके, इसका स्टार्ट रहता है, एंड -1 होता है, एंड देन देयर इज अ स्टेप, राइट। सो स्टार्ट हमेशा डिफाइन करता है ये फर्स्ट एलिमेंट, एंड एंड इज नथिंग बट एंड -1, सो एंड स्टेप इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट। चेक कीजिए, 20 - 10 10 आएगा, 40 - 30 10 आएगा, 50 - 40 10 आएगा, कोई भी नंबर उठा के उसके चेक करो। 100 90 10 आएगा, 90 80 10 आएगा, 80 70 10 आएगा, 70 60 10 आएगा। अप टू यू हाउ यू वांट टू स्पेस इट, मतलब दो नंबर के बीच कितना स्पेस और गैप रखना है वो आप स्टेप नाम के पैरामीटर से डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो जनरली रेंज यूज होता है, एंड देन based on this difference between two numbers you can create odd number, even number, ऐसे अलग अलग सीरीज भी आप क्रिएट कर सकते हो। और यही है अपेंड, जो ये यहाँ पे अपेंड होता है जनरली फॉर लूप यूज करके किया है। इफ यू वांट फॉर लूप भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए रेंज एंड एक एम्प्टी लिस्ट में हम वो वैल्यू भर रहे हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी सपोज आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, और नंबर्स है, ओके, नंबर्स, इसमें सारे हैं 1 2 3 5 6 8 9। ओके, नाउ आपको सिर्फ क्वेश्चन इज प्रिंट ओनली इवन नंबर्स फ्रॉम अबव लिस्ट, प्रिंट ओनली इवन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एलिमेंट आप प्रिंट कर रहे हो, वो सारे नंबर को एक लिस्ट में डाल के वो लिस्ट आपको प्रिंट करना है। तो इसका एक एग्जांपल है, जनरली यू स्टार्ट, ओके, आपको क्या करना है, पहले तो इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं, ओके, और वो इवन नंबर किसी लिस्ट में स्टोर करने हैं, और फिर वो लिस्ट आपको एज अ आंसर प्रिंट करना है, राइट। तो यू कैन स्टार्ट विथ आंसर इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, पहले मैं खाली लेता हूँ, और जैसे हमारा आउटपुट स्टेप है इनपुट लॉजिक एंड आउटपुट, तो आउटपुट स्टेप, इनपुट तो आपको दिया गया है, ये इनपुट है आपका। क्वेश्चन को मैं ऊपर लिखता हूँ इफ यू वांट, और लॉजिक आप लिखोगे इधर, एंड आउटपुट, आउटपुट इज आंसर, जनरली आउटपुट एक आंसर, ये एम्प्टी है, और आंसर में आप लिखोगे प्रिंट आंसर, राइट। अभी ये खाली है बट इट शुड वर्क, देखिए ऐसे। तो अभी आपको क्या करना है, जो इवन नंबर्स फाइंड आउट करने थे वो इवन नंबर इसमें से फाइंड आउट करके इसमें ऐड करना है, राइट, एंड देन वो आंसर यहाँ पे प्रिंट होगा। ऐड करना इज नथिंग बट अपेंड, अपेंड ऑपरेशन होगा यहाँ पे कुछ, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट है। और इफ का बनेगा इवन नंबर्स, इवन नंबर का लॉजिक बताइए, एनीवन नोज इवन नंबर्स का लॉजिक कैसे लिखते हैं। पहले तो फॉर लूप से एक नंबर निकालना पड़ेगा बाहर, मतलब यहाँ पे एक इटरेटर लगेगा, राइट। तो ये 1 बाहर आया तो 1 के ऊपर चेक लगेगा, ऑड और इवन का चेक, ये सेटिस्फाई हुआ तो आंसर में जाएगा, नहीं तो ये सेव नहीं होगा, ऐसे ये लॉजिक आएगा। तो पहले एक एक नंबर बाहर निकालिए, फॉर नंबर इन नंबर्स, राइट, ये नंबर बाहर निकला, चेक करना है तो चेक करो प्रिंट नंबर करके, ये देखो 1 बाय 1 नंबर बाहर आ रहा है। तो अभी ये जो बाहर आया हुआ नंबर है इसमें चेक लगाना है, इफ नंबर
कैसे चेक लगाते इवन नंबर है कि नहीं है? Num mod of 2 equals to 0. यस, सो मॉड ऑफ ऑपरेशन रिमाइंडर लेते हैं, उसका रिमाइंडर कोलन, और जब भी ये ट्रू आएगा, मतलब यहाँ पे ट्रू होगा, तो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर आते ही हम क्या करेंगे, इसमें अपेंड करेंगे। क्या अपेंड करेंगे, नम, राइट। नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। एल्स स्टेटमेंट चाहिए क्या? हमें नहीं चाहिए एल्स, हमें सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो एग्जीक्यूट करके देखो, इवन नंबर आया आपको। इवन नंबर, सपोज इफ इट इज नॉट, नो नंबर आर देयर, इवन है ही नहीं इसमें, तो क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट आएगा। ओके, राइट, ये एम्प्टी लिस्ट से हमने स्टार्ट किया था। क्लियर? इसमें कुछ डाउट है क्या? इज इट कॉम्प्लेक्स और समझ में आ रहा है लॉजिक कैसे लिखना है? इससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है। लेट मी पुट इट डाउन हियर। इट्स अप टू यू कि आपको कितना प्रैक्टिस करना है। जनरली दे विल स्टार्ट विथ स्टोर योर नेम इन नेम वेरिएबल। वेरिएबल में आपका नाम स्टोर करो, खुद का, एंड प्रिंट वॉवेल्स इन इट। सेम यही रहेगा, वॉवेल्स नहीं, नहीं तो कंसोनेंट प्रिंट करने के लिए बोलेंगे। वॉवेल्स क्या होते हैं? हाँ, स्पेलिंग चेक कीजिए कॉन्सोनेंट का बटन। वॉवेल्स क्या होते हैं, पता है क्या किसी को? Yes, anyone? Vowels, consonants. Vowels पता है? नहीं? Anyone nowadays from इंग्लिश मीडियम वगैरह कोई नहीं है इंग्लिश मीडियम से? A E I O U. यस, या रूपाली स्वामी, एब्सोल्युटली। ए ई आई ओ यू दिख रहा है क्या? दीज आर नथिंग बट वॉवेल्स। ए ई आई ओ यू मतलब आपके नाम में इन पांचों में से कोई भी आया तो उसे आपको एक लिस्ट में डाल के प्रिंट करना है। इट्स कॉल्ड अ प्रिंट वॉवेल्स। एंड कंसोनेंट, ये छोड़ के आपके नाम में कुछ भी रहेगा तो वो आपको प्रिंट करना है, कॉन्सोनेंट। क्लियर? देन ऑड नंबर, इवन नंबर्स, एंड जनरली और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सच एज प्रिंट द डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कौन से एलिमेंट है? प्रिंट द डुप्लीकेट एलिमेंट, डुप्लीकेट भी रहते हैं। एंड प्रिंट द डुप्लीकेट्स, और देन एक रहता है ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स, बट आपको आएगा कि आई डाउट। ठीक है, नॉट एन इशू, आखिरी में दे दूंगा वो ऑप्शन। सो दिस यू कैन ट्राई इट आउट। इसी का इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे करके दिखाया है। देखिए, इट स्टार्टेड विथ एम्प्टी सेल, फिर नंबर ऐड हुआ, फिर अपेंड हुआ, और वही नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एग्जीक्यूट करके देखना है तो आप कर सकते हो, बट सेम कोड इज रिटन हियर विथ इन डिटेल्ड, और ज्यादा डिटेल्ड में यहाँ पे करके दिखाया है। मैन्युअली आपको एग्जीक्यूट करना है तो वन बाय वन यू कैन स्टार्ट लाइक दिस। ये देखिए, ऐसे नम में क्या आएगा, 1 आएगा, नीचे क्या आएगा, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, कमेंट वगैरह दे सकते हो। उसमें क्या आएगा, इफ 1 एम्परसेंट 2, इसका आंसर क्या आता है?
ऐसे आएगा ये, राइट। 1 ampersand टू 1 आएगा या कुछ आएगा और देख लो एक बार, बट ये फॉल्स आएगा, देन दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि ये फॉल्स आया इफ के आगे। इफ के आगे फॉल्स आता है तो क्या आता है, नीचे का एग्जीक्यूट नहीं होता, राइट। दैट्स व्हाई इट डजंट ऐड एनीथिंग, तो ये फेल हो जाता है। फेल होने के बाद ये ऊपर यहाँ जाता है, इट स्टार्ट विथ 2, सपोज देयर इज अ 2, यहाँ पे 2 है तो 2 करो, 1 है तो ऑलरेडी देखा है, 35 है तो 35 के लिए करके देखो, 35, तो इफ के आगे 35 आ गया, 35 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 1 आएगा, इफ के आगे 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, फॉल्स आएगा, तो इसलिए ये रन नहीं होगा, दिस विल नॉट रन, तो वापस ये ऊपर जाएगा। ओके, सो यही आप इटरेट कर सकते हो और आगे आके जाके रियलाइज होगा कि कोई भी ऐड नहीं हो रहा है इसके अंदर, यही है डिटेल में करके दिखाया है। टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, देखिए एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी, मस्क मेलन ऐड करना है, वाटरमेलन ऐड करना है, आप कर सकते हो, वाटरमेलन एंड कस्टर्ड एप्पल। यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट है, सो आई एम एक्सटेंडिंग द लिस्ट। एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी, मस्क मेलन, वाटरमेलन, कस्टर्ड, ये हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है, डॉट एक्सटेंड, सो अपेंड एक्सटेंड, यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हो, राइट। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, पॉप टू, रिमूव, रिमूव इज वेरी बेसिक, जो आपको रिमूव करना है वो लिखिए डायरेक्टली, आपको एग्जांपल चाहिए तो यहाँ पे भी एग्जांपल आपको मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन में, यू क्लिक ऑन अ रिमूव, यहाँ पे नीचे भी एग्जांपल रहते हैं, डॉट पॉप, राइट, डॉट फू वगैरह, आपको कुछ भी लिस्ट से कुछ भी निकालना है तो डायरेक्टली डॉट रिमूव वाटरमेलन तो निकल जाएगा ऐसे। ओके, आपको कुछ एक्सटेंड करना है, रिमूव करना है तो डायरेक्टली आप रिमूव कर सकते हो। somebody asked me this question yesterday, कोई पूछ रहा था कि 2 लिस्ट कैसे ऐड करना है, फ्रूट्स एंड मोर फ्रूट्स, दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन्ड। एडिशनल, ये जो प्लस ऑपरेटर है, नीचे हम वापस पढ़ेंगे, बट रेफरेंस यहाँ पे है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कॉनकैटिनेट ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको, मतलब ऐड हो जाता है चारों यहाँ पे। इसमें से आप फिर एक एक पॉप करना है तो ये करो, रिमूव करना है तो चेरी रिमूव कर सकते हो, मैंगो रिमूव कर सकते हो, स्पेसिफिक आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके, बनाना रिमूव किया है, मैंगो, चेरी। मल्टीप्लाई क्या करता है, सॉरी, मल्टीप्लाई क्या होता है, जनरली मल्टीप्लाई इज नथिंग बट रिपीटेशन, जो स्ट्रिंग में देखा है हमने, पैटर्न देखा था ना, उसी वो यहाँ पे भी वर्क होता है एक्चुअली। ये देखिए, स्टार इंटू 3, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे भी वर्क होता है। एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी, ये 3 बार आएगा, एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी, एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी, एंड नीचे वाला एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी, ऐसे। सो मल्टीपल टाइम्स विल आल्सो वर्क। आपको और एडिशन वगैरह करना है तो लेट्स ट्राई विथ नंबर्स एज वेल। यहाँ पे टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के साथ किया है, नंबर के साथ करना है और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करना है तो आप चेक कर दो। इज इक्वल टू 20, 30, 40। एक्चुअली ये इंटरव्यू में पूछा था। लेट मी आस्क यू द सेम क्वेश्चन। चलो, एक ऐसा है, सपोज ये है लिस्ट 1, राइट, 20, 30, 40, लिस्ट 2 कर देते हैं, इसे 1 किया था, इज इक्वल टू लेट्स से 3, 4 एंड 5। ओके, देन मुझे आंसर में, ओके, आंसर में क्या चाहिए मुझे, आंसर आई नीड इज लिस्ट 3 इज इक्वल टू 20 plus 3 is 23, comma 30 plus 4 is 34, comma 40 plus 5 is 45। ये आंसर में चाहिए ऐसे।
मतलब इसका एडिशन, ये दोनों का एडिशन होना चाहिए, ये दोनों का एडिशन होना चाहिए और ये दोनों का एडिशन होना है। बाय डिफॉल्ट लोग क्या करते हैं, ओके ये एडिशन है तो लिस्ट भी क्रिएटेड है मेरे पास, तो लेट मी ऐड लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। ये देखिए ऐड डायरेक्टली करोगे तो ये ऐसा आता है, मुझे ऐसा चाहिए। कोई कर सकता है कि ये वेरी सिंपल क्वेश्चन बट ओके, जहाँ पे एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नाम का एक टॉपिक हम यूज करते हैं, और एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक प्रोग्रामिंग का स्टाइल है, वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आप यूज करोगे तो आपको आसानी से आएगा। बट यू कैन स्टिल यूज अ फॉर लूप वगैरह आप यूज कर सकते हो। और उससे भी कोई कर सकता है क्या इमिडिएटली? एनीवन वुड लाइक टू डू इट? हम्म किसी को अटेम्प्ट करना, मतलब anybody feels like should try? Yes, कोई कर सकता है क्या? Yes or no? ठीक है, यू कैन टेक योर टाइम। ओके, मैं करके दिखा सकता हूँ आपको, बट आई वुड वेट आपका कितना प्रोग्रेस है, बेस्ड ऑन दैट मे बी यू कैन, वी कैन ट्राई। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हिंट देता हूँ मैं, यू शुड स्टार्ट विथ इंडेक्सेशन, समथिंग टू डू विद द इंडेक्सेशन। इस प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए इंडेक्सेशन का टॉपिक आप ट्राई कर सकते हो। सम फंक्शन, ओके, हाँ ठीक है, मतलब सम वगैरह इनबिल्ट फंक्शन नहीं चाहिए, प्रोग्रामिंग चाहिए। सम का क्या यूज होता है, देखिए सम करोगे तो यू डायरेक्टली सम ऑफ दिस, सम ऑफ लिस्ट 1 लिखोगे तो ये सम होगा ऐसा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड, आई नीड लाइक दिस, नॉट दिस। ये तो कोई भी कर सकता है, फॉर लूप भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली, ये सम होगा वो। ट्राई, बहुत सिंपल है, वेरी बेसिक, यू शुड बी एबल टू डू इट। जो आपने पढ़ा है उसी नॉलेज के ऊपर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अभी तक जो आपने पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, इंडेक्सेशन 2 बार पढ़ा है ना। समझ में आया प्रॉब्लम सबको? तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। ओके, तो यही लेवल के क्वेश्चंस आपको भी रहेंगे, नॉट टू डिफिकल्ट, नॉट टू सिंपल, थोड़ा लॉजिकल। ठीक है, सॉर्टिंग करना है तो वो सॉर्ट, सिंपल सिंपल सॉर्ट, इंडेक्स, ये सारे फंक्शंस देखिए। लाइक काउंट करना है तो क्या करेगा, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड, कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है वो काउंट होगा। इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न इंडेक्स, जो नाम यहाँ पे लिखा है वही वर्क होता है। सॉर्ट क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। रिवर्स क्या करता है, रिवर्स करता है, बट इसकी जगह हम कोलन कोलन -1 भी देखेंगे, राइट। कोलन कोलन -1 भी हम यूज करते हैं ना मोस्टली। कई फंक्शंस है, जैसे सम है, मैक्स है, मिन है, लेंथ है, सॉर्टेड है, रिवर्स्ड है, मतलब रिवर्स होता है। जिप एंड इन्यूमरेट करके भी है। जिप हम टपल में पढ़ेंगे, दैट इज स्पेसिफिक टू द टपल एंड यू विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। इन्यूमरेट आपको एक्चुअली जो मैं ये बता रहा था ना कि वर्चुअली 0 1 2 नंबर क्रिएट होता है, ये इन्यूमरेट से आप एक्चुअली उसे देख भी सकते हो नंबर। ओके, इफ यू वांट लेट मी शो यू कि ये एग्जैक्टली इन्यूमरेट क्या है। थोड़ा एडवांस हो जाता है, जनरली वी डोंट, हम यूज नहीं करते, बट इफ यू वांट लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ इन्यूमरेट। तो सपोज मेरे पास ये फ्रूट्स का लिस्ट है, ओके, और मुझे इसका इंडेक्स निकालना है, एप्पल, बनाना और मैंगो, ऑरेंज, चेरी, ये चारों का इंडेक्स चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, फॉर
इंडेक्स कॉमा वैल्यू, मतलब एक दो वेरिएबल क्रिएट करूंगा, इंडेक्स एंड वैल्यू, इन इन्यूमरेट, इन्यूमरेट, और इन्यूमरेट के अंदर वो फ्रूट्स लिखूंगा, एंड देन प्रिंट बोथ इंडेक्स कॉमा वैल्यू। ये देखिए, सो दिस इज अ प्रूफ कि ये जो चार इक्वेशन है उसके ये इंडेक्सेस है। तो ये जनरली यूज होता है, बट अनलेस एंड अनटिल यू नो, आप इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर करके इंडेक्सिंग वगैरह ट्राई करो, दैट टाइम यू विल फिगर इट आउट व्हाट इज इन्यूमरेट। बट राइट नाउ आप नहीं पता चला, नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, डोंट वरी, बट यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन इंडेक्सिंग, लिस्ट का इंडेक्सिंग वगैरह के साथ आपका मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए उसके लिए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मतलब कल की जो टीसीएस एनक्यूटी था ना, उसमें आया था प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन। हाँ उसमें पूछा था कि हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर ही हमको प्राइम नंबर के लिए रेंज देगा, लाइक हाँ 2 to 10,000 हाँ ऐसी रेंज थी। और उसमें भी थी कि बाबा 2 to 10,000 तक ही वो रेंज दे सकता है, कि 1 to 10 या फिर 1 to 20। हाँ और उसमें से हमें यूजर से वो लिस्ट लेके रेंज की, उस लिस्ट में से हमें प्राइम नंबर निकालनी थी और उस प्राइम नंबर की हमें सम करनी थी और हम्म सम डिस्प्ले करनी थी। हाँ ओके। प्राइम नंबर का आपको लॉजिक पता है, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स? यस। नो सर, आप वो एक बार अगर सॉल्व कर सकते तो वो दिखा दो। हाँ सॉल्व तो कर सकते हो, बट अंडरस्टैंड, आपको पहले तो प्राइम नंबर का लॉजिक चाहिए। सम का तो लॉजिक डायरेक्टली आप बिल्ड कर सकते हो। सम क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है नंबर का, सपोज इसमें आपने सारे प्राइम नंबर लिए हैं, 1 7 11, और क्या क्या है प्राइम नंबर, 1 7 11 13। हाँ, तो ये सारे प्राइम 17। नंबर हैं। ओके, मुझे 1 to 20 के बीच का चाहिए, सॉरी 1 to 20, 17 भी आएगा, 19 भी आएगा। 5 रह गए। 3 एनीथिंग एल्स? 2। ओके, एनीथिंग एल्स 1 to 20 हो गया। तो लेट मी मेक इट प्रॉपरली, लिस्ट 1, ये लिस्ट यूजर ने दिया है, ओके सपोज, और यूजर ने बोला कि 1 to 20, राइट? तो यूजर से आप इधर दो नंबर ले सकते हो, स्टार्ट नंबर, एंड नंबर, एंड रेंज से वो नंबर प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट, बाय द वे ये करना है अभी, देन विल मिस समथिंग ऑन द लिस्ट साइड, दिस इज नॉट रिलेटेड टू लिस्ट, बट ठीक है। इनपुट में आप कंसिडर कर सकते हो स्टार्ट नंबर, राइट? जनरली इंटीजर इनपुट, राइट? एंटर द नंबर, नंबर हो गया, और इसका एंड नंबर भी आपको लेना है यूजर से, राइट? लेट मी टेक एंड नंबर एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, सॉरी कॉपी। चलो, स्टार्ट मेरा कहाँ है, 1 है, एंड कहाँ है, 20, हो गया। तो इनपुट आउटपुट तो आ गए, सॉरी ये स्टार्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे एंड चाहिए, एंड। मुझे क्या नंबर जनरेटेड क्या आ गया, पूरा रेंज जनरेट करना है ना आपको। ऑल अंडरस्कोर नंबर्स करता हूं मैं, ऑल नंबर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, रेंज ऑफ, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ, बोलिए स्टार्ट से रेंज शुरू होगा, कॉमा एंड पे खत्म होगा। ओके, चाहिए तो यहाँ पे आप प्रिंट करके देखिए एक बार, ऑल नंबर्स, ऑल अंडरस्कोर नंबर्स, 1 पे एंड 20 पे
अभी इस नंबर में से आपको ये स्टिल भी एक 20 मिसिंग है, तो n -1 रहता है, तो n+1 कीजिए, एक बार वैलिडेट कीजिए। आ गया। अभी इसमें से आपको प्राइम नंबर का लॉजिक लिखना है, तो ये हो गया आपका इनपुट स्टेप। तो मैं एक काम करता हूँ, ये हो गया आपका इनपुट, और यहाँ पे आप लिखोगे लॉजिक। ओके, सपोज इसको और सिंपल करते हैं, एंड यहाँ पे आपने लिखा आउटपुट। ओके, यहाँ पे और सिंपल करते हैं। मुझे पता है एम्प्टी लिस्ट लेने से, आंसर का एक एम्प्टी लिस्ट लेता हूँ मैं, और इस लिस्ट में लॉजिक में जो भी बैठेंगे उसको मैं आंसर डॉट अपेंड करूंगा, राइट, आंसर डॉट अपेंड करूंगा, और उस आने वाले आंसर लिस्ट को प्रिंट करूंगा। प्रिंट फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर इज क्या आएगा आपका? फाइनल आंसर आंसर आएगा, राइट। आप वैलिडेट करना है तो कर सकते हैं। नाउ अपेंड कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मैं कमेंट करता हूँ 120। ये आपके फाइनल, ये प्रिंट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो इसे प्रिंट मत कीजिए, इसे हाइड करके रखिए फॉर टाइम बीइंग। 120 फाइनल आंसर इज 0 आ रहा है। तो ये आपका फ्रेमवर्क बना, इसके अंदर आपको लॉजिक लिखना है यहाँ पे। तो इफ यू नो व्हाट इज प्राइम नंबर, तो हम लॉजिक लिख सकते हैं। नहीं पता है तो चैट जीपीटी करो, पता है तो स्टार्ट फॉर नंबर इन ऑल अंडरस्कोर नंबर्स, राइट। इसमें से नंबर एक बार प्रिंट करके देखो हो रहा है क्या सारे नंबर्स। हर बार वैलिडेट करते चलो इफ यू वांट टू क्विकली कंप्लीट। एक बार प्रैक्टिस हो गया, मतलब सारे नंबर तो प्रिंट हो रहे हैं, एंड फाइनल आंसर भी प्रिंट हो रहा है। एक्सीलेंट। आपको अपेंड का जो लॉजिक था वो चेक करना है तो वो भी चेक करो। फॉर नंबर्स, नंबर, हर एक नंबर अपेंड होना चाहिए आंसर में, आंसर, राइट, डॉट अपेंड। एक बार अपेंड का भी चेक कर लो, एंड ओके, एग्जीक्यूट 120। तो फाइनल आंसर इज दिस। तो मेरा फ्रेमवर्क रेडी हो गया, सिर्फ मुझे लॉजिक लिखना बाकी है अभी, राइट। तो चलो लिखो फिर लॉजिक। इफ गिवन नंबर, ओके, डिवाइडेड बाय, वो नंबर खुद से, क्या रहता है प्राइम नंबर का लॉजिक? एनीवन नोज बाय द वे? 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका लॉजिक कैसे लिखते हैं? दिस नंबर विल गो उसको सिर्फ 1 से डिवाइड करके 1 आना एंड चाहिए। 7, सिर्फ 1 एंड 7 से डिवाइड होता है ये नंबर, तभी इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। तो डिवाइड होता है मतलब क्या होता है यार? सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स सी 46 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 आता है। यस, 40 डिवाइड होता है मतलब इसका रिमाइंडर विल ऑलवेज कम टू 0। 46 और किससे डिवाइड होता है देखिए, 46 और लेट्स टेक सम सिंपल एग्जांपल 20 का। चलो 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है रिमाइंडर? 0। 20 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर क्या आता है? 0। 20 डिवाइडेड बाय 10 रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो पैटर्न। तो इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर और उसका आंसर 0 आता है, तो ये, जस्ट अ सेकेंड, हेलो, Hi Kapil, this is Madhura. हेलो, हाँ, सॉरी, चलो। तो नंबर डिवाइड होता है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आता है। ये लॉजिक क्लियर? चलो अभी सिंपल है फिर। इफ नंबर डिवाइडेड, कहाँ से डिवाइड करना चेक करना है? 2 से। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, 5 से हो गया और उससे हो गया, तो आपका रिमाइंडर और आपका वो क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको चेक करना है, सॉरी, यू नीड टू चेक, लेट्स कोई नंबर 20,
यहाँ पे आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, इट विल बी इजी, एंड देन एक्चुअल लॉजिक हम अंदर प्रोग्राम के अंदर बाद में लिखेंगे। सपोज 20% 1 किया मैंने एंड इज इक्वल टू 0 चेक किया, तो आंसर क्या आता है देखिए, ट्रू आ रहा है, राइट। देन 2 से किया, ट्रू आ रहा है। देन क्या क्या एग्जांपल थे, 2, 5 एंड 10 ना, 2, 5 ट्रू आ रहा है एंड 10, ओके। तो कोई भी नंबर 2, 3, 4 ऐसे कोई भी नंबर से ट्रू आ गया इट एनी सीक्वेंस, तो हमारा क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। बट इफ इट इज अ प्राइम सच एज 7, चेक कीजिए 1 से डिवाइड करके, 1 से ट्रू आ गया एंड 7 से भी ट्रू आएगा, बट इन बिटवीन 2, 3, 4 से नहीं आएगा, चेक। 2 से फॉल्स आ रहा है, 3 से फॉल्स आएगा, कोई भी नंबर ले लो, 3, 4, 5, 6 अपार्ट फ्रॉम 1 एंड 7 फॉल्स आता है। तो ये लॉजिक आपको लिखना है। सो फॉर नंबर स्टार्टिंग जनरली इसे while लूप में लिखा जाता है, बिकॉज इंडिविजुअली हमें एक इनफाइनाइटली रन करना है ना, तो इसलिए आई विल राइट द लॉजिक इन द इफ फॉर्मेट, सॉरी while में, while नंबर, जो भी नंबर है उसका एम्परसेंट काउंटर चाहिए, डिवाइड करने वाला आदमी जो भी डिवाइड कर रहा है काउंटर चाहिए, काउंटर इज इक्वल टू 0। ये द मोमेंट ये आएगा, नीचे से आप चेक कर सकते हो, आएगा तो क्या करेंगे, अपेंड नहीं करेंगे, while is not equal to 0 आना चाहिए हर बार। 1 से तो नहीं होगा, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे। तो जनरली 7 भी नहीं होना चाहिए, उसमें 7 आ गया तो भी आता है, तो यू राइट -1 तक जाना है आपको। तो while एक काम करते हैं, नंबर का ये जो लॉजिक है मैं नीचे लिखता हूँ, एंड while नंबर लेस देन मेरा जो एक्चुअल नंबर है, सॉरी एक्चुअल नंबर यहाँ पे आएगा और काउंटर से कम हो, और काउंटर विल स्टार्ट फ्रॉम 2, ओके। क्यों, क्योंकि 2 से डिवीजन हमें चेक करना है, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे, एवरी टाइम 2 आएगा, यहाँ से ये नंबर रहेगा 7, 2 से 7 नीचे है तो ये डिवाइड होगा यहाँ पे, ओके, नंबर डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे है, आ रहा है, ट्रू आ रहा है। सर आवाज येत नाहीये। सॉरी, काउंटर, ये नंबर काउंटर नीचे हो गया, इफ काउंटर इज डिवाइडेड बाय 0 देन अपेंड नहीं है तो आप रन कर सकते हो। लेट मी चेक, आपको जस्ट दिखाने के लिए आई एम प्रूविंग काउंटर प्रिंट करना है, और आगे while लूप यूज कर रहे तो काउंटर आना चाहिए while का, इज इक्वल टू 1। तो हर एक नंबर के लिए अभी जितने भी नंबर ऑल नंबर्स में है, ओके, उसके सारे नंबर के लिए ये काउंटर स्टार्ट होगा 2 से, ओके, एंड हर एक नंबर का लेस देन है तो ये प्रिंट होगा एंड इंक्रीज होके प्रिंट होगा। बट प्रॉब्लम, इनिशियल जो नंबर होता है 1 एंड 2, ये आपको बाय डिफॉल्ट ऐड करना पड़ता है। 1 से कोई भी नंबर डिवाइड ही होता है, तो 1 से शुरू ना करें, इसीलिए 2 से शुरू करना है। एंड फॉर सिंप्लिसिटी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद द 2, ओके, 2 से स्टार्ट कीजिए, 2, 3, 4 ऐसे। सो लेट मी शो यू, यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो काउंटर रहेगा, हर एक नंबर के लिए काउंट आएगा। टाइम बीइंग मैं आउटपुट को ये क्लोज कर देता हूँ, चलो, स्टार्ट विद द 2, एंड विद 4, प्रिंट, ओके, 2 एंड 3 हर एक नंबर के लिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी चेक कीजिए, नंबर का डिवाइडेड बाय होना चाहिए
while this number is less than this, if number को multiply percentile of counter is equal to 0 आ गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, राइट? तो आप पास कर सकते हो, नहीं तो इसका if not and counter नहीं, सॉरी, while counter is less than number, तो counter में प्रिंट कर रहा हूँ if is equal to 0 और ये not हो रहा है and I can append then answer append, क्या करना है आंसर में append number, मतलब कोई भी नंबर, पहले क्या होगा, ये नंबर जो आएगा मेरा सपोज 2 से स्टार्ट हुआ, राइट? यहाँ पे 2 आ गया, काउंटर क्या था 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, उसका 0 आ गया रिमाइंडर, तो इट विल नॉट अपेंड अगेन। नेक्स्ट 3 डिवाइडेड बाय 2, वो भी नहीं होगा। देन 4 5 6 ऐसे इंडिविजुअली रन होगा। लेट मी शो यू, बट इनिशियली 1 2 3 यू कैन नॉट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट, क्योंकि 1 2 3 के लिए ये फेल हो जाएगा। 4 5 6 यू कैन डेफिनेटली ट्राई। सो लेट मी स्टार्ट विथ 4, आपको चेक करना है तो यहाँ पे ऑल नंबर्स में 4 and 5 लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल नंबर्स इज इक्वल टू 4 5, तो यहाँ पे लिखिए फिर फॉर में नंबर इज इक्वल टू आएगा 4 एंड while counter is 2 is less than 4, तो ये ट्रू आएगा। नीचे आएगा if not number ampersand 2, राइट? इसका आंसर क्या आएगा 0, तो ये अंदर नहीं जाएगा। ओके, इनका आंसर 0 आ गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। बट ये सेटिस्फाई नहीं होने वाले चाहिए ना, आपको नॉट वाले चाहिए। तो हो गया तो ये अपेंड नहीं होगा। सपोज ये नॉट आ गया किसी 2 3, मतलब 2 के बाद सॉरी काउंटर इज 2 and this is 4, okay, not an issue। okay, let me try with the number। नहीं आ गया तो मॉडिफाई कर सकते हैं और लॉजिक, नॉट एन इश्यू। डेफिनेट इनिशियल जो ये है, okay, we'll start with 4 and with let's say 6, हमने आंसर अपेंड, ओके 4 5 and 6, ओके 5 आना चाहिए बट यहाँ पे नॉट नहीं आ रहा है। मैं अलग से लॉजिक लिख देता हूँ। फॉर नंबर इन रेंज, फॉर नंबर फॉर नंबर इन रेंज ऑफ, जो गिवन नंबर है कौन सा है, और इन ऑल रेंज, if given number ये नंबर से डिवाइड हो गया और इसका 0 आ गया, तो ये
नहीं है, मतलब सपोज दिस इज 4, ये 4 है और यहाँ पे आ गया रेंज ऑफ 4, रेंज ऑफ 4 इज 0 1 2 3 नंबर, so range has to be start from 2, actually 1 से तो डिवाइड होगा 2 3 4, so 2 से डिवाइड, check the actual number is 4 divided by 4, okay, sorry actually itna doesn't take time but I'm not able to for number in, okay. Okay, give me some time. एक number ampersand number, तो fuck यार, suppose start with 3 comma 4 comma 5 and for ये number in my this list for 3 comma 4 comma 5 और ये नंबर को मुझे डिवाइड करना है और temp in a range of this number, range of this number, print this number comma range, just a second, I guess कुछ अरे वो होना एग्जीक्यूट, just a second, sorry actually my bad, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए but I'm not able to focus it, okay, for this just only log can't take anything here, 4 comma 5 print number 1, so number 1 के लिए temp range in number 1, so here range best, अरे got it, तो 4 divided by 0 चेक करना है, 4 divided by 1, 4 divided by 2, 4 divided by 3 and 5 divided by 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, यही लॉजिक मुझे लिखना है. if any of this divisibility, suppose ये यहाँ पे देखो 4 divided by 2 क्या आएगा, definitely I will get a 0, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट, तो यही लिखना है, और 5 के लिए ये 0 कहीं भी नहीं आएगा, so I need to build this logic only, so कैसे लिखते हैं, इसे लिखो, if के साथ भी लिख सकता हूँ मैं, बट if का थोड़ा ठीक है यार, पास कर देता हूँ मैं, चलो, if any temp number, सॉरी temp इस बाद में, ऊपर का जो भी नंबर divided by temp is equal to 0 आ गया, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, तो पास, मैं पास तो कर पाऊंगा बट मुझे ऊपर भी जाना है, एज इन आई नीड टू इंक्रीज दिस एज वेल, नंबर +1, हाँ कर सकते हैं, और नहीं हुआ तो नंबर ऐड, मतलब इन केस ऑफ 5 दिस कंडीशन विल फेल एट, मतलब ये कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो आई कैन यूज दिस,
लेट्स इफ एल्स चेक करते हैं, नहीं हुआ तो एल्स में मैं ऐड कर सकता। इफ सेटिस्फाई हो गया तो पास कुछ नंबर एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। ये कंडीशन बट सर सेटिस्फाई कोड नहीं हुआ, जस्ट अ सेकेंड, एल्स इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आई विल ऐड आंसर डॉट अपेंड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। कोई भी आपका जो लिस्ट है उसमें क्या ऐड करना है, आपको नम ऐड करना है, ऊपर वाला, राइट, नम। यस, सो लेट्स ट्राई दिस लॉजिक। कॉपी एम्प्टी लिस्ट के साथ ट्राई करते हैं एंड विल स्टार्ट विथ दिस। यहाँ पे 1 से भी नहीं होगा, 2 से होगा। ओके, 4 का पास हुआ, आंसर डॉट अपेंड, अपेंड नम होना चाहिए। हाँ यस, कुछ आप बोल रहे थे, एनीथिंग? आंसर डॉट अपेंड, आंसर इज एम्प्टी। 4 यहाँ पे आ गया, नम रेंज 4 पास हो गया, बट 5 के केस में सपोज यहाँ पे 5 आ गया एंड रेंज ऑफ 5 मतलब 2 3 4 एंड 2 3 4 आ रहा है ना यहाँ पे, ये भी होना चाहिए 2 3 5। सो डिवाइड जब होगा वो 2 3 4 एंड 5, 5 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है बराबर, लेकिन नहीं चाहिए। नंबर में 5 है, टेम्प में क्या क्या होगा, 0 सॉरी 2 3 4 एंड 2 3 4 में आ जाएगा क्या, नहीं 2 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, so that's why it is in the else. Yes. कुछ यहाँ पे मिसिंग आ रहा है, I need to fill something, maybe पास की जगह मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या, और इसको और सिंपल कर सकते हैं, while में मैं लिख दूंगा for की जगह while। Can I take another 2 minutes? I know थोड़ा डिले हो रहा है, but definitely I want to solve this. It doesn't take this much time, but while लिस्ट रेंज से कम होना चाहिए, नंबर 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 नहीं, नंबर इन द लिस्ट। ओके, फॉर से चलते हैं, फॉर एफ। हाँ, ये नंबर जब भी 4 एंड 5 पास होगा, सपोज 4 के लिए ये डेफिनेटली आई नीड टू, लेट्स से यार एक ट्रायल के लिए मैं देखता हूँ, नॉट अंडरस्कोर प्राइम इज इक्वल टू एम्प्टी क्रिएट कर देखते हैं एंड नॉट एम्प्टी को मैं अपेंड कर देता हूँ फॉर आवर केस, नॉट प्राइम डॉट अपेंड टेम्प एंड ब्रेक हो गई है, नहीं होगा तो आंसर एंड प्रिंट नॉट, या आंसर प्राइम आ रहा है एंड नॉट प्राइम 2 आ रहा है, नहीं 4 एंड 5 था, नॉट प्राइम के अंदर नीचे मतलब somebody is going here, नॉट प्राइम है ना, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो आई विल ब्रेक एंड आई विल रिमूव दिस। let me try something with the 6 as well. Yeah, it is going 3 times क्यों आ रहा है, let me figure it out and then maybe I can solve, you can add 7, या ये आ रहा है 5 एंड 3 कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, अपेंड हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो एक काम करते हैं, अपेंड करने के बाद भी ब्रेक लगा दो आप,
यप चलो इसमें आपको नंबर रेंज देना है, तो क्या था आपका 1 to 20, तो बोलो लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ क्या था आपका लाइक 5 comma whichever like 25 ऐसा कुछ. यस आई डोंट नो आप लोगों को कितना समझ में आया, मतलब थोड़ा मतलब आई वाज नॉट फोकस सो बट डेफिनेटली यार ये 3-4 जो फंक्शंस है प्राइम नंबर वगैरह के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. दिस इज डेफिनेटली नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम, बट इससे भी ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो. वन ऑप्टिमाइजेशन विच आई नो, ये जो रेंज है ना, ये डिवाइडेड बाय 2 करने से भी वर्क होता है. ओके मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो. जो रेंज जनरेट होता है ना, वो हाफ ऑफ द नंबर ही आप जनरेट कर सकते हो. मतलब हाफ ऑफ अ गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर आ रहा है उसके हाफ से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. दिस इज वन ऑप्टिमाइजेशन विच आई नो, बट अपार्ट फ्रॉम दिस या हाँ बोलिए, किसी को कुछ डाउट है इसमें? आई नो थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर माई inability to complete within the time. Okay चलो. yes किसी को डाउट है क्या इसमें कुछ? ये नॉट प्राइम वाला भी चलेगा यार, निकाल सकते हो आप. और थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तो कर सकते हो. थोड़ा पैरेलली एक्सप्लेनेशन एंड थिंकिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बाकी कुछ अभी ये लॉजिक जो पूरा है इसमें उसमें डाल दीजिए. क्या लॉजिक था? ये लॉजिक था ना, इनपुट वो था. लेट मी ऐड दैट. वो कुछ ऐड करके आप कर सकते हो, इधर ऐड करो एंड देन एग्जीक्यूट कर सकते हो. चला गया, ठीक है. आई विल शेयर यू द कोड. मैं आपके साथ कोड शेयर कर सकता हूँ इफ यू वांट. लेट मी शेयर द लॉजिक. कहाँ गया ये फाइल? कंट्रोल जेड. कहाँ गया? वेट, कंट्रोल वाई. अरे सॉरी वी मिस्ड. कहीं तो वो चला गया. कहाँ है यार? अरे यार यहाँ लिखा था ना. हाँ लेट मी शेयर यू दिस लॉजिक. कॉपी. बाकी का आप ये करो. कहाँ पे? या आपको कॉपी करना है तो आप आवाज. ओके सो ये प्रोग्राम वर्क हो रहा है. यू कैन ट्राई इट आउट यू वांट. सो आई नो थोड़ा डिले